गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो ये है तुम्हारा आज का फर्स्ट प्रॉब्लम से, वो है fx is equal to e to the power minus x. This study we have done few more problem. Today we will do this problem. Okay, e to the power minus x. Okay, उसका रेंज क्या है 0 से 2 पाई। से 2 पाई। So try to solve this one. माइनस से हम किए थे क्या? नहीं किए थे सर। तो जैसे तुमको पता है, पहले तुमको फूरियर सीरीज लिखना है। देन e to the power minus x is given the function, given function is e to the power minus x, so that can be written as a0 by 2 plus summation over n is equal to 1 to infinity a n cos nx plus summation over n is equal to 1 to infinity b n sin nx. So this is your first equation. You have to start in that way. After that, you have to find out all the coefficients a0, an, and bn. After getting all these coefficients, you have to put all these coefficients into the first expressions. Then you have to simplify. So this is the case every time you are going to find out a0, an, and bn. Okay. So first you find out a0, limit क्या है 0 to 2 pi. So then you go for a n calculation. पहले a0 निकाल लो, इसके बाद हम an फाइंड आउट करेंगे। सो an के लिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, वो फार्मूला हम बताएंगे, तुमको बोल देंगे।
A0 क्या होगा? A0 is equal to 1 upon pi 0 to 2 pi e to the power minus x dx. That will be the A0 expression. Now we'll go for an. A0 कितना हुआ बोलो? देखो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम. Obtain the fs Fourier series for fx is equal to the power minus x in the interval 0 to 2 pi. So we can write the Fourier series for the function fx is equal to the power minus x. So fx is equal to the power minus x, that can be written as a0 by 2 summation over h 1 to infinity a n cos x. Plus the second term n is equal to 1 to infinity dx sin nx. Okay, so anyhow this is expression number 1. So from this expression you find out a0, an and b. उसके बाद you have to put all those values here in expression number 1. So a0 का क्या फॉर्मूला है? Now a0 is equal to 1 upon pi 0 to 2 pi e to the power minus x dx. So just simple integration over there. e to the power minus x का क्या होता है? e to the power minus x होता है. And नीचे में क्या होगा? ये minus x है. So that's why minus 1 is there. 0 to 2 pi. Now put all these values, upper limit and lower limit. Ultimately we are getting 1 minus e to the power minus 2 pi by 2 pi. So ये है तुम्हारा a0 का एक्सप्रेशन. The formula is fixed. Now a0 a0 हो गया. Now an is equal to, for this expression formula is 1 upon pi 0 to 2 pi e to the power minus x. Then क्या होगा? cos टर्म होगा. e to the power minus x उसके साथ cos nx dx होगा. So let's find out this value. Pi 0 to 2 pi e to the power minus x cos nx. So you don't go here normal chain rule method. Okay. So इससे बदले में we are having one formula here. You have to use this formula. Standard formula e to the power minus a to the power ax cos bx dx. Something like that. यहाँ पे देखो e to the power minus x, it's a kind of e to the power ax cos m into x, so cos bx. Okay, into dx.
ये जो होगा इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट होगा, ये लिख के रखो, e to the power ax, e to the power ax divided by a square plus b square within the whole bracket क्या होगा, a cos bx plus b sin bx. ओके, a cos bx plus b sin bx. आउटसाइड क्या होगा, e to the power ax by a square plus b square. So this is standard formula. Now here what is the value of a here? देखो, if you compare with this, a का value -1 because it is -x, so ax, a का value -1, bx और b का value क्या है, small n, b का value -x. So in that way the result is given. Just put the values here, then you will get the in result. Similarly you have to find out here. So find out this. मैंने a0 an का फॉर्मूला बोल दिया, बता दिया. So now you find out. पहले तुम कोशिश करो, उसके बाद हम सॉल्यूशन दे देंगे. सॉल्यूशन दे देंगे. सर an का वैल्यू आया है n sin nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर. बोलो. वैल्यू an का आया है n sin nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर. उसके बाद वो लिमिट पुट करना है. e to the power ax by a square plus b square ये कहाँ चलेगा? फॉर्मूला में है ना, e to the power x by a square plus b square whole into a cos bx plus b sin bx. इसके साथ ये a का b का a b का वैल्यू पुट करना है. करने के बाद तो जो लिमिट है 0 to 2 वो भी तुमको पुट करना होगा. Then you will get the final result. Okay. Then you will get the final result. यस सर आ गया. आगे ना, उस टाइम गलत हो गया था. वैल्यू है e का पावर -6 डिवाइडेड 1 प्लस n स्क्वायर इनटू n sin nx माइनस cos nx. लिमिट पाई जो है 0 to 2 पाई वो तुमको पुट करना. ओके सर. देखो एन को हम लिखा रहते हैं, बीएन को तुम खुद से करो. देखो ये फॉर्मूला मैंने बोला, सबको मैं बोल रहा हूँ, ये -1 बी एन. ना देखो ये फॉर्मूला 1 बाय पाई बाहर में है, e to the power ax है, a का वैल्यू -1 से e to the power -6 by 1 plus n square. a का वैल्यू 1 है, माइनस है, सो -1 होल स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई इट्स 1. b का वैल्यू n है, सो इसलिए n स्क्वायर, तो 1 प्लस n स्क्वायर. सो ये है दिस वैल्यू. अंदर में क्या है, a मींस -1 into cos bx, bx मींस nx,
प्लस बी का वैल्यू बी एन साइन एन एक्स हो गया, होल ब्रैकेट 0 to 2 पाई। हाँ, ये तुम्हारा जो लिमिट है ये तुमको पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे ये जो है तुम्हारा एन का वैल्यू जो है तो वो बाहर में आ सकता है, लेकिन वो क्या है, वो कांस्टेंट है। सो 1/पाई जो है वो एज इट इज, और बाहर में 1/1 प्लस एक्स का भी बाहर में आ गया। अंदर में क्या होगा देखो ये ठीक है, ये देखो ये पहले लिख दिया, ये एज इट इज प्लस साइन, सो एन साइन एन एक्स, एन साइन एन एक्स इंटू टू द पावर माइनस एक्स, ये पहला है, यहाँ पे माइनस है इसलिए वो राइट साइड में हम करते हैं। सो राइट साइड में क्या होगा, ये माइनस कॉस एन एक्स टू द पावर माइनस एक्स, टू द पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स 0 to 2 पाई। नाउ ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट तुमको यहाँ पे पुट करना है। पुट करो तो ये यहाँ पे देखो 2 पाई है, ठीक है ना। तो cos 2 पाई के लिए तुम जानते हो ना, cos 2 पाई के लिए n पाई एक्चुअली, तो x का वैल्यू 2 पाई, सो ट्वाइस n पाई, दैट मींस sin का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, sin n पाई इज ऑलवेज 0, सो दैट्स व्हाई द वैल्यू इज 0 एंड माइनस लोअर लिमिट होगा, सो माइनस sin 0 भी 0 है, सो 0 माइनस 0, इसलिए दिस टर्म से द पहला वाला जो टर्म है दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी वैल्यू। ओके, बिकॉज फॉर अपर लिमिट 0 and the lower limit also it gives 0, so that's why 0 minus 0। okay, so ये हो गया, फिर माइनस ये माइनस x का वैल्यू कितना है, -2 पाई, सो माइनस विद इन ब्रैकेट टू द पावर -2 पाई हो गया एंड cos n पाई, ठीक है। सो cos n पाई मीन्स 2 पाई, सो ठीक है, तो दैट इज 2 फैक्टर आ गया, तो इट विल ऑलवेज विल बी इवन फंक्शन है, सो -1 कभी नहीं होगा, ये +1 होगा, इसलिए e टू द पावर -2 पाई और पाई के लिए क्या होगा 1 हो गया, तो अल्टीमेटली अपर लिमिट के लिए e टू द पावर -2 पाई ओनली है, ठीक है। क्योंकि e टू द पावर x के बदले में 2 पाई हो गया, सो e टू द पावर -2 पाई, cos का वैल्यू क्या होगा, cos 2n पाई, so 2n pi means its even function is always cos 2n pi always give you 1, so e to the power -2 pi into 1, so e to the power 2 pi into 1, so e to the power -2 pi हो गया, then lower limit, okay, so इसलिए माइनस लोअर लिमिट e to the power -0, so e to the power 0 means it's a 1 value and cos 0 also 1, so e to the power -2 pi -1 मिल गया, so लोअर लिमिट के लिए इतना ही है। तो देखो ये खत्म हो गया ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, इसलिए 1 को मैंने पहले लिखा 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई डिवाइडेड बाय 5 होल इनटू 1 प्लस n स्क्वायर। तो ये था तुम्हारा an का वैल्यू। तो सिमिलर काइंड सिमिलर वे bn को तुमको निकालना पड़ेगा। सो bn का bn इसके लो क्या लिखोगे तुम, यहाँ पे देखो जैसे an था, bn के लिए क्या होगा 1/पाई 0 to 2 पाई e टू द पावर -x sin nx dx, sin nx dx, तो ये होगा तुम्हारा bn के लिए, एंड यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, इन दैट केस क्या होगा फॉर्मूला e टू द पावर dx sin dx, क्योंकि वो साइन टर्म है, cos bx में बदले में वो sin dx होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा इधर e टू द पावर x बाय स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल इनटू a cos bx की जगह में होगा sin bx और प्लस की जगह में होगा माइनस b cos bx, तो cos sin हो जाएगा, sin cos हो जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा ठीक से सुनो, e टू द पावर x sin bx dx is equal to e to the power ax divided by a square plus b square whole into a sin bx minus b cos bx। तो यहाँ पे a का वैल्यू -1, b का वैल्यू n सेम हो जाए, एंड नाउ यू फाइंड आउट bn का वैल्यू, जैसे तुमको an मिल गया,
जैसे तुम्हारा एन मिल गया, तो यूज दिस फॉर्मूला, तो हम पीएन फाइंड आउट करके उसको बताओ क्या है। मैंने एन का वैल्यू बोल दिया, तो पीएन तुम इस तरह सेम वे कैलकुलेट करके बोलो क्या होता है रिजल्ट। सर bn का वैल्यू है -e⁻⁻x डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर इंटू sin x प्लस n cos nx। क्या बोलो, फिर से बोलो। सर वैल्यू है -e⁻⁻x प्लस 1 सॉरी -e⁻⁻x divided by 1 plus n square sin nx in bracket plus n cos nx। बाहर में माइनस है ना, माइनस इसके बाद माइनस है। यस सर, जो माइनस मेरा अंदर में था उसको हम बाहर में ले बाहर ले लिए, लिया। इसलिए मेरा अंदर में हाँ, प्लस हो गया। ठीक है। तो और बाहर में है, मीन्स तुम्हारा बाहर में और एक 1/π है। उसके बाद भीतर में जो है, अंदर में जो है, उसको 0 से 2π, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, देखो ये जो है 0 to 2π, ये भी पुट करो। ये रीअरेंज भी यस कर सर। सकते हो इस तरह। हम्म, दो दो टर्म में ब्रेक कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। दो टर्म में ये जो ब्रैकेट में बाहर था, बाहर में उसको मैंने अंदर में घुसा के वो दो टर्म कर दिया। सर लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू आया है n इंटू 1 माइनस e का पावर -2π डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर। अच्छा, यस सर, और सर और नीचे पाई मेरा छूट गया तो पाई भी होगा।
सर bn का वैल्यू मेरा सही है। देखता हूँ। ये था ना e to the power x sin bx dx e to the power x square plus b square a sin bx minus b cos bx। a का वैल्यू -1 b का वैल्यू n है, तो ये तुमको यस सर, मेरा भी यही आया है। मेरी 1/5 ये वैल्यू होगा। जैसे b का वैल्यू a का वैल्यू पुट करके 0 से 2 पाई बना के ये आ गया, तो ये बाहर में ये फैक्टर n का फैक्टर बाहर में आ गया, ये माइनस कॉमन ले लिया जैसे तुमने बोला, -1/1/5 1 प्लस n स्क्वायर। ये e टू दी पावर माइनस x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होने से दो टर्म्स निकल गए। तो 2 पाई देने से क्या होगा, पहला साइन टर्म्स है तो साइन टर्म्स यहाँ पे जो है ये तो जीरो ही होगा, साइन 0 0 है और साइन 2 पाई भी 0 है, इसलिए 0 माइनस 0 ये छोड़ दो इसको, ये 0 0 माइनस 0 कैंसिल आउट हो प्लस ये जो फैक्टर है ये जो फैक्टर है n into e to the power -2 पाई और cos 2 पाई ऑलवेज इट इज 1, सो इसलिए पहला टर्म जो है 2 पाई के लिए n into e to the power -2 पाई into 1, cos n पाई के लिए cos 2 पाई 2n पाई, so that is 1, so n into e to the power -2 पाई into 1 पहला वाला, एंड 0 के लिए क्या होगा, cos 0 1 होगा, e to the power 0 भी 1 होगा, इसलिए -n होगा लिमिट। तो ये फैक्टर आ गया, इसलिए कुल मिलाकर तुम्हारा ये रिजल्ट होगा। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा n है, यहाँ पे भी n है, तो यू कैन टेक -n कॉमन। हाँ, तो -n कॉमन लेने से क्या होगा, बाहर में जो माइनस था वो प्लस हो गया और n बाहर में आ गया, अंदर में क्या होगा 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई, 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई डिवाइडेड बाय ये जो फैक्टर है वो ये है। तो अल्टीमेटली n बाय n स्क्वायर प्लस 1 इस तरह 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई बाय नहीं था। सो ये था तुम्हारा रिजल्ट। तो सबको मैं बोल रहा हूँ ये जो प्रॉब्लम है बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो an bn एंड तुम्हारा क्या मिला, a0 मिल गया, ठीक है, तो सभी मिल गया। सो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे क्या किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले वाला जो इक्वेशन था उसी में a0 का वैल्यू ये है, ठीक है, प्लस समेशन ओवर n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी an ये वैल्यू पूरा का जो है इतने सारे जो है ये an का वैल्यू है फुल इनटू क्या होता है cos nx होता है। सिमिलरली प्लस क्या आता होगा, समेशन ओवर n इक्वल 1 टू इनफिनिटी bn sin nx, तो वो भी होगा, ठीक है। तो सेकंड पेज में हम जाएंगे, तो आप तो देखो यहाँ पे किसी को भी कुछ कहना है, कुछ डाउट है तुम बोल भी सकते हो। तो ये जैसे बहुत टफ नहीं है, लेकिन दृष्टि में तुमको ही करना है, थोड़ा बड़ा सा काम नहीं है। तो देखो क्लास क्या बोला मैंने, ये तो तुम्हारा एन का वैल्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे आ गया। देखो e टू द पावर -x ये a0 का वैल्यू प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी an का वैल्यू इनटू cos nx, उसके साथ जो होगा ये टर्म्स प्लस n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी bn का वैल्यू ये है, जस्ट फाइंड आउट किए हम लोग n sin nx।
तो ये तीन टर्म्स, एक जीरो का, उसके साथ एन का वैल्यू, देन बी एन का वैल्यू, ओके, प्लेसिंग करने के बाद ये आ गया। नाउ सभी जगह में देखो 1 माइनस टू दी पावर माइनस 2 पाई, ये जो फैक्टर है तीनों को तीनों टर्म में ये फैक्टर है, इसलिए ये टर्म बाहर में आ गया। सभी सबको इससे नेबरी टर्म्स में ये जो है फैक्टर ये कॉमन है, इसलिए सबसे बाहर में ये आ गया। अंदर में क्या होगा, ये हाफ हो गया। देखो तो तो देखो यहाँ पे पाई आ गया। 1 माइनस माइनस 2 पाई, तो इसलिए फर्स्ट टर्म में हाफ हो गया। ये देखो 1 माइनस माइनस 2 पाई है, तो एज यू हैव टेकन 1 माइनस 2 पाई बाहर में ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में हाफ हो गया, इसलिए हाफ हो गया, कोई बात नहीं, इसलिए ये हाफ है। प्लस यहाँ पे भी ये बाहर में आ गया, सो n इज 1 टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n स्क्वायर, ये जो टर्म्स फैक्टर रहेगा cos nx। सिमिलरली थर्ड टर्म में भी 1 माइनस बाय पाई, ये बाहर में है, तो ये क्या होगा, n/n स्क्वायर प्लस 1 sin nx ये रहेगा। तो ये था अप टू दिस। देन क्या हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 करके हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ज्यादा नहीं है, n का वैल्यू 3 तक हम लोग लिए हैं यहाँ पे देखो। तो पहला ये जो है, ये सेकंड ब्रैकेट में हाफ, तो ये कांस्टेंट है, अनचेंज होगा। प्लस यहाँ पे n का वैल्यू 1 होगा, तो क्या होगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1, तो हाफ हो गया, हाफ। cos n का वैल्यू 1 है, तो cos x, सो हाफ cos x हो गया। फिर तुमको n का वैल्यू क्या लोगे, 2 होगा, सो 1/2 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 प्लस 1 मीन्स 5, सो 1/5। देन इसकी ये क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 2 है। नाउ फिर n का वैल्यू 3, सो 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो कुल मिलाकर तुम्हारा n का वैल्यू 1 2 3 लिए हैं हम लोग, तो इसलिए ये आ गया। सिमिलरली साइन के भी ये है, हाफ हो गया। n का वैल्यू जब 1 होगा, तो n/n स्क्वायर प्लस 1, n का वैल्यू 1 है, नीचे में क्या होगा, n स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 तो 2, 1/2 होगा, ठीक है ना। तो हाफ साइन क्या हो जाएगा, हाफ साइन x हो गया, n का वैल्यू 1 है, तो इसलिए साइन n इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे साइन nx, n का वैल्यू 1 है, तो साइन x हो गया, हाफ साइन x। now देखो n का वैल्यू 2 होगा, तो क्या होगा, 2/2 स्क्वायर प्लस 1, सो 2/2 स्क्वायर मीन 4 प्लस 1 5, 2/5, सो 2/5 साइन क्या होगा, nx की जगह 2x हो जाएगा।
थर्ड टर्म क्या होगा, इनका वैल्यू 3 होने से 3/3² + 1 से 3/10 होगा, 3/10 sin 3x हो गया। तो ये है तुम्हारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ये है तुम्हारा फाइनल रिजल्ट। तो इन दैट वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं और एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, वो तुम कोशिश करो, और में तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, तुमको मैं बोल रहा हूँ लिखो। मैं किसी दिन बोलूंगा जी ये जो प्रॉब्लम मैंने किए ना वो सबमिट करो, इसलिए तुम लोग आइडियल रहोगे तो बाद में मुसीबत में पड़ जाओगे। जो मैंने प्रॉब्लम कर रहा हूँ ना यहाँ पे, हम बोल सकते हैं वो एक साथ में लिख के सॉल्यूशन करके अपलोड करो, तो तब तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो नाउ जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, x - x² में भेज देते हैं। ये रेंज क्या है, -π <x π। ये है तुम्हारा प्रॉब्लम, आज का सेकंड प्रॉब्लम। तो घर में करो, कल हम वो चेक करेंगे, क्लास में हम चेक करेंगे। तुम रेडी करके बिफोर कमिंग टू attending the class, you personally people send me, okay? Personally people send me। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए ना। हाँ हाँ हम भेज देते हैं। ये सर भेज दीजिए ग्रुप में। मैंने ग्रुप में दे दिया, ज्यादा टफ नहीं है। ये वाला fx = x - x², और रेंज क्या है -π से π। शॉर्टकट में हम लिखते हैं -π से π। तो a0 an bn फिर से तुमको फाइंड आउट करना है, देन वहां पे डालना पड़ेगा। तो ये है तुम्हारा लास्ट में, ये तुम घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। यहाँ पे तो हो गया, ठीक है। कल हम मिलेंगे, कल है तुम्हारा फ्राइडे, कल 9:50 से तुम्हारा क्लास है। और जो मैं वन चीज बोलना चाहता हूँ, वो कल जो तुम लोग आपस में जो झगड़ा करते हो ना, वो दोस्त लोग है ना तुम लोग, ये नहीं होना चाहिए। हम भी तो स्टूडेंट था ना, मेरा भी दोस्त है। तो ये तुम्हारा ये कंस्ट्रक्टिव कुछ करना है, ठीक है ना। तुम लोग तो सभी तो दोस्त बन गए ना, डिफरेंट प्लेस में तुम लोग आ गए यहाँ पे। तुम्हारा इसके बाद तो जॉब होगा, नौकरी होगा, तुम बड़ा बड़ा कंपनी में जाओगे, वहाँ पे देश विदेश का भी लोग वहाँ पे काम करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, है फ्रेंडशिप बरकरार रखना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में, लेकिन दोबारा हम मिलेंगे ना तो हम एक विल टेक एक्शन। सो तुम लोग आराम से, ठीक है, खुश होकर क्लास करना होगा। जो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा क्लास में, ड्यूरिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्लास, जिस सर क्लास में होगा, तो सर के साथ बात कीजिएगा, ठीक है। मेरे साथ भी तुम बात कर सकते हो।